Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. And today's topic is zoology and evolutionary perspective. हमने zoology को start किया है पार्ट 1 मिलर एंड हेनरी की बुक से स्टार्ट किया 5th एडिशन. ठीक है. सो चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमने थोड़ा सा जोलॉजी का इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम डिस्कस किया था. एंड टुडे इज अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. आपने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से चेक करना है कि जोलॉजी को किस तरह से उसकी ब्रांचिंग की गई है, क्लासिफिकेशन. सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. ठीक है, बातें साथ साथ. ओके. एनिमल्स शेयर अ कॉमन evolutionary past and the evolutionary forces that influenced their history and evolutionary processes are remarkable for the relative simplicity, yet they have had awesome effects of the life forms. आपको पता है कि जो zoology है ना, it's a like fascinating science. ठीक है. अभी तो कुछ भी नहीं, आप just start ले रहे हैं, लेकिन जब आप आगे उसकी वेरिएशन देखेंगे ना, चाहे एनिमल्स की देखें या प्लांट्स की देखें, सॉरी एनिमल्स की देखें, फिशेस की देखें, बर्ड्स की देखें, एम्फीबियंस की देखें. ठीक है. इतना ये फैसिनेटिंग इनकी करैक्टरिस्टिक्स है ना, लाइक इट्स गोना मेक यू सो एस्टॉनिशिंग. बहुत ज़्यादा हैरान कुन है. कहीं कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ज़बरदस्त है, कहीं उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं अमेजिंग है वो. ठीक है. बहुत ज़बरदस्त है. सो दीज प्रोसेसेस हैव रिजल्टेड इन एन estimated to 30 million species of the organisms. ठीक है. इट्स लाइक 30 million species of the organisms जो हैं वो हैं हमारे पास जो इट्स लाइक 4 to 30 million, टू मच, लाइक 4 to 30 million स्पीशीज़ जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये किस हद तक जो है ये वर्क करता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस. ठीक है. सो इट्स अ वेरी you can say it like astonishing, amazing. ठीक है. Okay, next is the organism of the living today or in the can be listed in the past and have come extinct. Zoologists यानी वो past में भी हैं जो extinct हो चुके हैं, many more extinct and many more present or existed today and so on. And zoologists must understanding the evolutionary processes, and they have to understand what an animal can have, how can they how can an animal it's originated, कहाँ से originate हुआ है, कैसे originate हुआ है, तो इस सब में इनका किस तरह से रोल है. ठीक है. सो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस. एक छोटी सी डिस्कशन थी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव according to evolutionary perspective or about the evolutionary perspective. ठीक है. Next is organic evolution. Organic evolution is the change of the population of the organism. ठीक है. Population of the organisms over time के लिहाज से जो organism हो कि population में change होगा वो organic population है, and it is the source of the animal diversity and it explains the family relationships with the animal groups. And Charles Darwin published the convincing device of the evolution in 1859 and proposed a mechanism that could explain evolutionary change. कि किस तरह से evolutionary change आया, ये सब कुछ किस तरह से हुआ, ये इसको स्टडी किया है हमारे पास चार्ल्स डार्विन ने इन 1859. वहाँ से उसने रिलेशनशिप्स जो हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप कि किस तरह से ये सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. सो इट्स अ वेरी बिग टास्क और जो उसने ये काम कंप्लीट किया और इस तरह से उसने इसको बताया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब ये है कि सॉरी since that a mechanism that could explain evolutionary change, since that time biologists have come to convinced out that the environment that evolution occurs, and the mechanism proposed by the Darwin becomes very confirmed, and now it serves as the nucleus of our broader understanding of the evolutionary changes. ये जो सब पैराग्राफ हम रीड करें इट्स लाइक जस्ट डिस्कशन. थोड़े से फिगर है इसमें, आप उसको अंडरलाइन कर ले, लर्न करें उसको. अंडरस्टैंडिंग हाउ द diversity of the animal structures and the functions based on the many challenges faced by the zoologist, and for example the cichlid scale eaters of the Africa feed on the scales of the other cichlids, and they approach a prey cichlid from the behind and bear by mountain of the scales and from the body. अब ये देखें कि एक जो cichlid है वो scales को ईट कर रहा है, और किसके scales को ईट कर रहा है, एक और cichlid के scales को. ठीक है. आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइक एक cichlid है जो दूसरे cichlid के scales को ईट करेगी, तो फिर वो क्या है कि वो देखें कितनी उसकी एक बड़ी characteristics है. ठीक है. The scales are then
फिर उन स्केल्स के साथ क्या होता है, ये स्टैक्ड अपॉन वन एंड अदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं ये स्केल, और इस तरह से इनकी अरेंजमेंट है। अब आपको फिगर देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह जो है एक किक्लिड के स्केल्स हैं, ठीक है। ये देखिए आप, बहुत क्लियर पिक्चर्स हैं जो आपको इस बुक्स में मिल जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त है ये बुक, इसलिए मुझे भी पसंद है कि इसमें क्लियर कट पिक्चर्स आपको मिलती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी, और क्लीन एंड नीट एंड क्लीनर, हर चीज़ उसमें आपको वाज़ा मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो ये स्केल्स हैं क्या किया जाता है, इनको सबसे पहले अटैक किया जाता है, एंड देन क्रश बाय द सेकंड जॉज एंड डिसेंड टू द स्टमक ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। यानी क्या होगा कि सबसे पहले ये कहाँ पे जा रहे हैं, सबसे पहले ये जाएंगे उस पर स्केल्स को अटैक किया गया, ठीक है। नेक्स्ट उसको क्रश किया जाएगा, क्रश करके उसको सेंड कर दिया जाएगा स्टमक में, स्टमक टू प्रोटीन डाइजेशन, स्टमक प्रोटीन इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या है, मिकियो हॉरी ऑफ द क्योटो यूनिवर्सिटी फाउंडेड देयर वाज टू बॉडी फॉर्म्स विद इन द स्पीशीज। अब इसमें पेरिसोडस जो है, ये पेरिसोडस माइकोलैपिस जो है, इसमें टू बॉडी फॉर्म्स होती हैं। वन फॉर्म हैड ए माउथ दैट वाज एसिमेट्रिकली कर्व्ड एंड क्या होगा फिर टू राइट एंड द अदर हैव हैड मोर माउथ दैट वाज एसिमेट्रिकल सर्कल एसिमेट्रिकली कर्व्ड टू द लेफ्ट। यानी टू फॉर्म्स है इसमें। एक फॉर्म में क्या होगा कि एक का माउथ जो है वो राइट साइड पे कर्व्ड है, दूसरे का माउथ क्या होगा, लेफ्ट साइड पे कर्व होगा। इससे क्या होगा, दिस एसिमेट्री अलाउड द राइट जॉड फिश टू approach and bite the scales from the left side of their prey, ठीक है, and the left jawed fish to approach the bite scales from the right side of the prey। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी ईटिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये कि उसके जॉज जो हैं, उसका माउथ बेंड है राइट एंड लेफ्ट साइड पे, उसको इतनी हेल्प आउट करता है वो ईट करने में या अटैक करने में अपने प्रे को, ठीक है। द सिमेट्री ऑफ अच्छा, राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आई थिंक इंशाल्लाह आपको हो गई होगी अंडरस्टैंडिंग कि लेफ्ट राइट जो है वो लेफ्ट को ईट आउट करने में, लेफ्ट राइट को ईट आउट करने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिस साइड पे वो कर्व होगा, ठीक है। बोथ राइट एंड द लेफ्ट जॉड फिश हैव बीन मेंटेन्ड इन the population, otherwise the prey wouldn't eventually become vary of the within the species। अब क्या होता है कि अगर ये लेफ्ट और राइट जॉड उसमें नहीं होंगे तो फिर लाइक प्रे इज फ्री और उस पर इस तरह से अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉफिटस, विच इज टॉफिटस डोबिजाई हैज आल्सो बीन एक्सप्लेन्ड फॉर द एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट। इसको भी एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट के लिए डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें डिफरेंट कलर पैटर्न्स हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कलर पैटर्न्स हैं जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये टॉफिटस डोबिडस की। इसकी जो कलर पैटर्न्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंट कलर पैटर्न्स दोज एज द रिजल्ट ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन एज अमंग द वेदरिंग रॉक एंड piles of the piles are separated by the expanses of the sandy bottom, and breeding is more likely to occur within their isolated population because fish that venture the land of the exposed predators। और इस तरह से जो फिश प्रीडेटर के पास एक्सपोज होगी उसको वो क्या करेगा, उसको वो प्रे करेगा, अटैक करेगा। So the next topic is the animal classification in the evolutionary relationship के animal की classification किस तरह से की गई है evolutionary relationship के according, किस तरह से इनकी evolution है उस तरह से ही क्या की गई classification। ये थोड़ा सा important topic है कि आपको idea हो कि किस तरह से है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इस तरह नहीं है कि लाइक मैं आपको इस बुक पे फुल बुक जो है वो करवा दूँ कवर और आपका फुल सिलेबस है लाइक, तो देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट जो है वो कंटेंट है, ठीक है। अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी इट्स लाइक ए फुल बुक ही उनका सिलेबस होता है। बहुत कम टॉपिक्स हैं जो अंदर से एक दो टॉपिक होते हैं जो इट्स नॉट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर यही हो, हमने स्टार्ट में जो थोड़ा सा स्टडी किया उसका इंट्रोडक्शन, उसमें कुछ डेफिनेशन है, बस ये नहीं कि एक एक वर्ड आपने उसका रेडी करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज है उनके डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। तो ये बुक इस तरह से है कि आपको जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को आप डिस्कस कर सकते हैं, उस टॉपिक के लिए यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, आपकी जो है वो इजीली अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये और मैं जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी लाइक सब हर टॉपिक्स जो है इस बुक से रिलेटेड कंटिन्यू रहेंगे आपके।
फिर जो टॉपिक आपको चाहिए होगा आप उससे हेल्प आउट, आपकी हेल्प हो सकती है और आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह आपके लिए। ओके, नेक्स्ट द टॉपिक इज एनिमल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इसमें हम ये चेक करेंगे कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किस तरह से एनिमल की क्लासिफिकेशन हो रही है। ठीक है, एवोल्यूशन इज नॉट ओनली द एक्सप्लेन वेयर द when the animals appear and the function as they do। इस तरह से नहीं है एवोल्यूशन के जिस तरह से एनिमल प्रेजेंट है वो कौन सा फंक्शन करता है। एवोल्यूशन है कि वो कब से था, किस तरह से आया, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसके एंसेस्टर्स के साथ मिल रही है, कौन सी डिसेंडेंट्स के साथ मिल रही है, तो इसको एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बट एक्सप्लेन्स द फैमिली रिलेशनशिप, पूरे बताएगा विद इन द एनिमल किंगडम में कौन से फैमिली रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, zoologist work with the many of the years to understand the evolution relationship among the hundreds of the cichlids and the cichlid species and the groups of the cichlids more closely related if they are। अब क्या है कि वो more closely related वो होंगे if they are with the shows their genetic material DNA with the each other than with individual other groups। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो एक दूसरे के साथ अगर वो अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, आप देखें कि उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो वो क्लोज हैं। सो यू आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू दी योर ब्रदर और सिस्टर। आपको पता है कि आप अपने ब्रदर सिस्टर से मोर क्लोजली रिलेटेड हैं देन योर कजन। सो ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है, यही रीजन है कि किस तरह से आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो अगर एक दूसरे के साथ मैच करता है तो इस वजह से ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर होती हैं। ठीक है, अच्छा इस लाइन को आई थिंक रीड करने की अब जरूरत नहीं है। देन हम देख सकते हैं वो फाउंड एट द अफ्रीकन किकलिड्स ओरिजिनेट्स द लेक फेंगोनिका। अब ये क्या है कि टेंगेनिका में, लेक टेंगेनिका में क्या हुआ है कि किकलिड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती थी फ्रॉम देयर द फिश इन्वेडेड द अफ्रीकन रिवर्स एंड लेक्स मलाई एंड विक्टोरिया। अब इसकी ये जो है वो अक्रस है कहाँ पे, लेक विक्टोरिया। 400 स्पीशीज हैव बीन लिंक्ड टू इन्वेजन बाय द एंसेस्टर किकलिड्स अप्रोक्सीमेटली 200,000 years ago। लाइक 200,000 years ago चेक किया गया है, उनको मिल गई है उनमें सिमिलैरिटीज। ठीक है, किकलिड जो अफ्रीका की है, विक्टोरिया लेक की है या मोलाविया की है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में क्लोज रिलेटेड है। जब वो क्लोज रिलेटेड है तो उससे पता चल जाता है कि इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो या कजन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ओके, देन क्या है, दैट टाइम पीरियड इज द लॉन्ग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। अगर आपने एवोल्यूशन को चेक करना है तो आपके लिए एक लंबा अरसा जो है वो इट्स लॉन्ग पीरियड जो आपको स्टडी करना पड़ेगा, फिर आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, रिमार्केबल zoologists now believe that almost the species arose much more recently, like Lake Victoria nearly dried out 14,000 years ago। तो वो ड्राई आउट हो गई है एंड मोस्ट ऑफ द विक्टोरियल स्पीशीज वुड हैव बीन लॉस्ट इन द प्रोसेस। अब इससे क्या हुआ कि वो जो स्पीशीज थी वो ड्राई होने की वजह से स्पीशीज लॉस्ट हो गई हैं। ठीक है, एंड like all other organism animals are named and classified into a territorial या hierarchical relationships। आपको पता है जिस तरह से हम हर ऑर्गेनिज्म को किया गया है, डिवाइड किया क्लासिफिकेशन की, इसी तरह एनिमल्स भी हैं। although Can Wall in 1907 to 1978 primarily remembered for the collecting and the classifying the plants, and this in turn system of the remaining binomial nomenclature। So this is the important line which has also been adopted for the animals के जो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हमें बताया गया है, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको डिस्कवर किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, कैल वॉन लीन ने विच इज इट्स ईयर इज लाइक 1707 टू 1778। ठीक है, तो ये कैल वॉन लीवन ने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो ये प्लांट्स के लिए था, लेकिन इसी को सेम सिस्टम को एनिमल्स के लिए भी यूज किया गया। ए two-part name describe each kind of the organism, and the first part indicates the genus and the second part indicates the species level and which is the organism belong, जहां से जिस स्पीशीज से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है वो। तो अब देखिए ये इसमें बता दिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नेम्स का क्या है, किस तरह से नेम को जो है वो रखा जाता है, नेम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से नेम्स हैं और इनको किस तरह से रखा जाता है। उसका एक पार्ट जो है वो होता है स्पीशी जीनस लेवल पे। ठीक है, जीनस होता है फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज द स्पीशी, वो स्पीशी जिससे वो बिलोंग करता है। सो ईच काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फॉर द एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें किकलिड स्केल ईटर की जिसका नाम पेरिसोडस है। ठीक है, पेरिसोडस माइक्रोसेफेलिस में आपके माइक्रोलैपिस में क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय इट्स टू
पार्ट नेम, इसके नेम की वजह से इसको जाना जाता है। इसका आप देखें साइंटिफिक नेम और इसके रूल्स और इसका यूज, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये सब आपको पता इसलिए होता है ताकि फुल वर्ड में, होल वर्ड में अगर आपको आपकी पहचान हो तो एक सेम नेम से हो तो आप उसको इजी टू रिमेम्बर एंड पहचान हो जाती है कि क्या ये वही जानवर है या ये वही पौधा है या वही प्लांट है, ठीक है। इसलिए साइंटिफिक नेम्स रखे जाते हैं। अब इसको उर्दू में कुछ और कहेंगे, पंजाबी में कुछ और कहेंगे, किसी और लैंग्वेज में, फ्रेंच, चाइनीज एंड हर लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसलिए ये साइंटिफिक नेम्स इनको ओरिजिनेट किया गया है और इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि इससे ये होता है कि होल वर्ड में जो भी पेरिसोडस माइक्रोलैपिस को स्टडी करेगा उसे पता है कि पेरिसोडस माइक्रोलैपिस क्या है। वो एक किक्लिड स्केल ईटर है, किक्लिड के स्केल को ईट करने वाला एक जानवर है, ठीक है। About the species and the genus levels, organisms group together, उनको families, orders, classes, phyla, kingdom and the domains and based on a hierarchy of the relatedness, इनको डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ से ये इसकी जो पूरे hierarchical order है, इसको ग्रुपिंग से स्टार्ट करेंगे। स्पीशीज, देन जीनस, जीनस टू इनटू फैमिलीज, फैमिलीज टू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टू क्लासेस, क्लासेस टू फाइला, फाइला टू किंगडम्स एंड किंगडम्स टू डोमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स इन द सेम। अब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेम स्पीशी में होता है वही ऑर्गेनिज्म सेम किसी भी सेम जो है, अगर एक जीनस का ऑर्गेनिज्म है तो वो सेम होंगे एक ग्रुप में, उसके बाद सेम स्पीशीज के। अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, सिंपल सी फिगर, अंडरस्टैंड करना होप आपके लिए इजी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेन है, अगर हम हाई लेवल से स्टार्ट करते हैं, देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब देखिए उसकी सबसे पहले डोमेन हम, क्योंकि यूकैरिया है, प्रोकैरिया नहीं है, ये एनिमेलिया है, ठीक है। इट्स यूकैरिया नॉट प्रोकैरिया, इट्स डोमेन। देन एनिमेलिया, एनिमेलिया इज द किंगडम, इट्स नॉट प्लांटी, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इसमें कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइलम, फाइलम में आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, या फिर फाइलम कॉर्डेटा है। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा देखें तो उसमें हेक्सोपोडा भी है जिसमें 6 फोर्थ एनिमल्स होते हैं, और उसमें ऑस्ट्रिकथिन्स भी हैं। ऑस्ट्रिकथिन्स से क्या है, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास मेमीलिया भी है, ठीक है। तो ये सब किसके हैं, ये अब कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, हेक्सापोडा। और जो कॉर्डेटा है उसमें 2 है, एक ऑस्ट्रिकथिस है और एक मेमीलिया है, ठीक है। अब ऑस्ट्रिकथिस में आगे देख सकते हैं आप पैर्सिफॉर्म्स हैं और प्राइमेट्स हैं। उसके बाद डाइपटेरा है यहाँ से ऑर्डर में, ठीक है, और नीचे से आपने ये प्राइमेट्स और पैर्सिफॉर्म्स पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा फैमिलीज, फैमिलीज में म्यूजिडी है, फैमिली में अगर हम इसकी देखें तो टेबेनिडी फैमिली है, किक्लीडी है, किक्लीडी हमारे पास आते हैं ऑस्ट्रिकथिस में, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमिनिडी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा म्यूका विच इज द जीनस, ठीक है। जीनस के बाद टेबेनस भी जीनस आ गया। नेक्स्ट मेंबर आपके पास क्या है, मुस्का डोमेस्टिका, एंड मुस्का डोमेस्टिका के बाद है टेबेनस और पैकस, ठीक है। दीज आर द एनिमल्स। उसके बाद पेरिसोडस माइक्रो लैपिस जो हमने अभी स्टडी किया, एंड होपोसेमियंस इज ह्यूमन। अंडरस्टूड। अब देखें मेरी बात सुने, यहाँ पे ये है कि अगर आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है ना, ये ऑस्ट्रिकथिस क्या है, ये प्राइमेट्स क्या है, हेक्सोपोडा, ये आप जब आगे डिटेल में ज़ूलॉजी को स्टार्ट करेंगे आपको सब वर्ड्स की समझ आ जाएगी। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि डोमेन जो है फर्स्ट लेवल है, नेक्स्ट इसका किंगडम लेवल है, फाइलम लेवल है, ठीक है, क्लास है, क्लास ऑर्डर, ऑर्डर टू फैमिली, फैमिली जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल और किस तरह से कौन सा ग्रुप है ये सब आपको ऐसा ऐसा समझ आने लग जाएगा जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे किस किस का स्टडी किया है, आपके फिगर में इंडिकेटेड है क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई जो हमने म्यूस्का डोमेस्टिका किया है, किक्लिड का कर लिया है, किक्लिड फिश एंड ह्यूमन इलस्ट्रेशन आपको पता है कि ह्यूमन सैपियंस है, ठीक है। सो ये है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है डिफरेंट एनिमल्स की और किस लेवल पे क्लासिफिकेशन की जाती है, तो इसको ये भी आपको माइंड में करना बहुत जरूरी है कि किस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्पीशीज आर द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, उनको एक जीनस में रखा जाएगा, सेम ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें, फिर जीनस के बाद ऑर्गेनिज्म इन द सेम और जीनस आर मोर क्लोजली रिलेटेड इनटू द फैमिली में होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन द सेम फैमिली, देन सो ऑन। इसी तरह से आपकी सब वो जो हियरार्किकल ऑर्डर है वो सेम वैसे ही रहेंगे, टैक्सा, उसको टैक्सा कहते हैं, ठीक है। व्हेन zoologists classify animals into the taxonomic groups, they are making the hypothesis about the external and which extent to which the groups of animals or the DNA even they study variation in the traits of the
जॉ स्ट्रक्चर। तो जिस भी स्ट्रक्चर में उनको वेरिएशन नजर आती है तो वो जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करते हैं, चाहे वो उनका जॉ स्ट्रक्चर हो, कलर पैटर्न्स एंड बिहेवियर है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ ट्रेस अल्टीमेटली आर बेस्ड ऑन द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि आपको पता है ये जो सब ट्रेड्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी की शेप है या उनके कलर पैटर्न्स है, उनकी प्रोटेक्शन है या बिहेवियर है, सब कुछ किसमें, उनके जीन्स में प्रेजेंट है। तो जेनेटिक मटेरियल की क्लास जो स्टडी है वो इसमें फोकस उनका इस चीज पे है, जोलॉजिस्ट का या टेक्सोनोमिस्ट का। ठीक है, एवोल्यूशनरी थ्योरी हैज अफेक्टेड द जोलॉजी लाइक नो अदर सिंगल थ्योरी, यानी एवोल्यूशनरी थ्योरी जिसने सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट किया है। इट इज इम्प्रेस साइंटिस्ट विद द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द all the biology as the cyclid of the Africa illustrated the evolutionary concept or the key to understand that why the animals look and the act in a unique way and in the particular geographical region as the habitats and they share the characteristics. So evolutionary से जो है evolutionary study जो है या evolutionary theory है, इससे आप जो है वो देख सकते हैं किस तरह से पूरी क्लासिफिकेशन और एक यूनिट पर इकट्ठा किया जाता है तमाम ऑर्गेनिजम्स को, ऑल ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का फिनिश होता है। सो आई होप कि लेक्चर आपके लिए इजी होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थोड़ा सा मे बी आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि रीडिंग है, अगर आपको ये रीडिंग्स नहीं चाहिए तो फिर हम यूं करेंगे कि मैं आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल लाइक वर्ड टू वर्ड रीडिंग नहीं करवाऊंगी, और डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल के साथ आपको उसको बता दूंगी और कुछ अंडरलाइंस जो हैं वो आपको साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वो सब कर लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से भी लेक्चर डिलीवर किया जा सकता है, आपको जिस तरह से पसंद है, इजी लगता है, आपके लिए आसानी है लर्न करने में, मुझे बताएं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इशू है डिस्कस जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी इस रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं और मुझे हेल्प करते हैं। ठीक है, सो वीडियो को भी लाइक कर दें, इंस्टा पे भी फॉलो कर दें। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।